Okay, so far we have covered what do you mean by इनकम और नेशनल इनकम के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने देखने थे वो हमने कवर किए हैं. वी हैव कवर्ड रियल एंड नॉमिनल इनकम लास्ट में. नॉमिनल इन नेशनल इनकम एंड रियल नेशनल इनकम, इन दोनों के बीच में हमने इसमें नॉमिनल नेशनल इनकम हमने कवर कर दिया है. ओके, या correct. So yeah, we have covered real national income as well. See कि real national income क्या है और nominal national income क्या है. So we are moving ahead with the discussion of another important aspect which is known as expenditure. Okay, expenditure क्या होता है वो आज हम लोग देखेंगे. So let's put a heading. Expenditure. Now when we talk about expenditure, expenditure basically means कि क्या खर्चा किया जा रहा है. Okay, what is being spent. Now it's not like every time only income is there, but there is expenses as well. Whatever is earned is also spent by the people, and this plays an important role, and this creates a inflow and outflow into the particular economy. So when we are talking about expenditure, the first thing that has to be defined is what do you mean by consumption expenditure. Okay, इसमें हमें सबसे पहली चीज़ जो डिफाइन करनी है उसे हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं. Now consumption expenditure actually means that the particular amount which is used in order to purchase goods and services, okay, or the spending done by households for the purchase of goods and services, for the purchase of goods and services for own consumption is known as consumption expenditure. For own usage is consumption expenditure. Consumption expenditure plays a very important role in order to understand as to how a particular house consumes their income. Okay, consumption आपको इसीलिए स्टडी करना ज़रूरी है क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर अपनी इनकम का कैसे कंज्यूम करता है वो भी आपको देखना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खर्चा कर दे, मैं इनकम तो कमा रही हूँ. ओके, आई एम अर्निंग इनकम, बट हाउ इज़ दिस, उसकी असेसमेंट तो कर दी गई है कि मैं इनकम कमा रही हूँ, उसकी असेसमेंट हो गई है, पर ये इनकम को मैं खर्च कैसे कर रही हूँ वो भी जानना ज़रूरी इसीलिए है बिकॉज दिस वुड हेल्प मी टू अंडरस्टैंड, और दिस वुड हेल्प द पॉलिसी मेकर्स टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी डिसीजंस दैट हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट. पॉलिसी डिसीजंस कैसे लिए जाने हैं वो समझने के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ना भी ज़रूरी है, ये समझने के लिए कि हाउस होल्ड सेक्टर सबसे ज़्यादा इनकम कहाँ पे स्पेंड करता है. ये स्पेंडिंग इसीलिए जानना ज़रूरी है फर्दर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट आर द स्किल्स और व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ हाउस होल्ड. हाउस होल्ड के रिक्वायरमेंट्स क्या है वो समझने के लिए भी ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ना ज़रूरी है. So now when we are talking about the household sector and the
business sector, there are two different types of transactions which are undertaken. Consumption expenditure के हम types देखेंगे इसके बाद. Okay, let us first study the types of consumption expenditure and then we will move ahead with the circular flow of income. Okay, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के 4 टाइप्स होते हैं, या फिर कुछ कंपोनेंट्स 3 या फिर 4 होते हैं. कई बार कंपोनेंट्स वहाँ पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इंक्लूडेड इज, और नॉर्मल एक्सपेंडिचर के 3 भाग हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. एक्सपेंडिचर is divided into 3 different types. The first one is known as consumption expenditure. Then we have, basically 2 parts में हम लोग इसे divide करेंगे majorly. Then we have investment. Investment is again divided into 2 different types. The first one is known as the private investment. Okay, first one is private investment. And the second one is known as the inventory investment. Consumption expenditure is basically expenditure done for by a household to purchase goods and services. Households purchase for their consumption. If households purchase goods for their own consumption, it is known as consumption expenditure. On the other hand, when investments are being undertaken, okay, investments are being undertaken means when goods are being purchased in order to undertake the production processes further. Okay, further production processes करने के लिए जब goods खरीदे जा रहे हैं उसे हम लोग investments कहते हैं. Investments 2 different types के होते हैं. The first one is known as a private investment. A private investment is that portion of final products that adds to the nation's stocks of income yielding physical assets. Okay, इनकम यील्डिंग फिजिकल एसेट्स में या फिर जो भी मशीनरी हमारे पास है उसमें अगर एडिशन किया जा रहा है, इफ़ वी आर एडिंग समथिंग इनटू द मशीनरी दैट वी हैव परचेज, इट इज़ नोन एज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. ओके, इसे हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जगह पे प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज कैपिटल फॉर्मेशन. प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन. प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऑलरेडी स्टॉक ऑफ गुड्स है, स्टॉक ऑफ गुड्स इन इट एडिशन इज डन. स्टॉक ऑफ गुड्स में एडिशन किया जाए तब उसे हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं. स्टॉक ऑफ गुड्स में बढ़ोतरी, ओके, इंक्रीमेंट इन द स्टॉक ऑफ गुड्स इज नोन एज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिकॉज द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द नेशन टू प्रोड्यूस द गुड्स इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इट. नेशन के अंदर में एक कंट्री के अंदर में एक कंट्रीમાં પોતાની પ્રોડક્શનની ક્ષમતાને વધારવા માટે જે પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવામાં આવે છે, જે પણ ખરીદી કરવામાં આવે છે એને તમે प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तरीके ओळखो છો. ओके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे नेशन की खुद की उत्पादन की क्षमता बढ़े. ओके, वैसे इन्वेस्टमेंट या फिर वैसी खरीदी को हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के कैटेगरी में डालेंगे. क्यों इसे इन्वेस्टमेंट कहा गया है, एक्सपेंडिचर क्यों नहीं कहा गया है? बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज अगर मैंने मशीनरी खरीदी है तो आज के आज उसको कंज्यूम नहीं कर लिया जाएगा, वो आगे वाले सालों में भी उसे यूज़ किया जाएगा. 3 साल 4 साल 5 साल के लिए वो मैं मशीन यूज़ करूँगी और एंड में जाके उसे स्क्रैप में बेच दूंगी डेफिनेटली. बट 1 से ज़्यादा सालों के लिए
more than 1 year I am able to take the benefit of that good. That's why it is known as an investment rather than an expenditure. Okay, if I am able to take the benefit of a spending that has been done by me for a period of more than 1 year, then I would be considering it as an investment rather than an expenditure in terms of economics. Okay, इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से अगर मैंने किसी एक गुड से जो भी बेनिफिट डिराइव करना है वो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट मैं डिराइव कर रही हूँ, तो वो कभी भी एक्सपेंडिचर की तरह नहीं कंसिडर किया जाए. This is the same thing with a private investment. It is done by a private company in increasing its own production abilities. वो खुद के production abilities या खुद की production capacity को बढ़ाने के लिए investment कर रहा है, इसीलिए उसे, या फिर जो भी spending कर रहा है वो production abilities को बढ़ाने के लिए कर रहा है, तो इसीलिए हम उसे private investment कहते हैं. ओके, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल नेशनल स्टॉक में एडिशन करता है. ओके, जो भी नेशन के पास जितनी भी मशीनरी है उसमें एडिशन होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से. Similarly, we have the next type of investment which is known as inventory investment. ओके, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि यहाँ पे हम ऐसी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं जो कि जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, इट इंक्लूड्स ऑल चेंजेस इन स्टॉक्स ऑफ रॉ मटेरियल, पार्ट्स एंड फिनिश गुड्स हेल्ड बाय अ पर्टिकुलर बिजनेस. ओके, यहाँ पे बिजनेस में जो भी चीज़ें मैंने प्रोड्यूस करी है, मैंने कुछ भी प्रोडक्शन किया है, उसकी वजह से मेरे स्टॉक ऑफ गुड्स में क्या चेंज हो रहा है उसे मैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च चला गया, 31 मार्च से पहले अगर मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया होता इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द थिंग्स इन अप्रैल. ओके, 31 मार्च पिछले साल का था, अप्रैल जो है वो अगले फाइनेंशियल ईयर में आया है. 31 मार्च 2022 वॉज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022. ओके, 31 मार्च 2022 जो था ये दिस डेट. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव परचेज द गुड्स ऑन 33/2022. ओके, 33/2022 जो है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर का पार्ट था? 2021-2022. ओके, ये मैंने गुड्स इस दिन पे क्यों खरीदे? ताकि मैं अप्रैल के महीने में गुड्स को प्रोड्यूस कर सकूं. आई नीडेड रॉ मटेरियल इन ऑर्डर टू अंडरटेक द प्रोडक्शन इन द मंथ ऑफ अप्रैल. सो अप्रैल में गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए मैंने मार्च में रॉ मटेरियल मंगवा दिया था. आइडियली दिस इज व्हाट हैपेंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो मैंने अपने स्टॉक ऑफ गुड्स में बढ़ोतरी की है. आई हैव इंक्रीज द स्टॉक ऑफ गुड्स. नाउ इट इज नॉट, द गुड्स हैव नॉट बीन परचेज बाय मी फॉर अंडरटेकिंग कंजम्पशन. ये कंजम्पशन के लिए गुड्स नहीं खरीदे गए हैं. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डायरेक्टली कंज्यूम दीज गुड्स, सो उसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं डाला जा सकता है. इन द सेम मैनर, I am not going to avail the benefit of these goods for a period longer than 1 year. Okay, 1 साल से ज़्यादा तक का बेनिफिट मुझे उस गुड्स में से नहीं मिलने वाला है. इट इज़ लेस देन 6 मंथ्स का बेनिफिट मुझे शायद से उस गुड्स में से मिलेगा, तो इसीलिए उसे मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी नहीं डाल सकती. इसीलिए उसे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में रखा गया है. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में ये इसीलिए रखा गया है क्योंकि लेस देन 1 ईयर के पीरियड के लिए उसमें से मुझे बेनिफिट मिल रहा है, और पर तो भी मैंने कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए उसे मैंने खरीदा है. इट्स नॉट लाइक आई एम गोइंग टू कंज्यूम दोज गुड्स. ओके, इफ आई एम एबल टू कंज्यूम दोज गुड्स दैट बिकम्स अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इफ आई एम एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ मोर ऑफ दीज गुड्स फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, देन इट वुड बिकम अ private investment. If it is less than 1 year, then it is a inventory investment. I cannot consume these goods and I would be getting a benefit out of it in the next coming months. Okay, coming months में मुझे उसमें से benefit मिलने वाला है, इसलिए मैंने उसे inventory investment में रखा है. So these are the components of expenditures. આ components છે expenditure ના components. ફરીથી હું ગુજરાતીમાં સમજાવું છું, જેને સમજમાં નથી આવતું, સમજાય નથી ઇંગ્લિશમાં, એના માટે હું સમજાવું છું.
એ જ બધું રિપીટ થાય છે, वही रिपीट हो रहा है जो अभी तक मैंने इंग्लिश और हिंदी में बोला है, ठीक है। सो કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર એ એક એક્સપેન્ડિચરનો ભાગ છે અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે એ બીજું ભાગ છે। કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર એ છે, એ બાબતો છે કે એ સ્પેન્ડિંગ છે જે હાઉસહોલ્ડ્સ કરે છે પોતાના કન્ઝમ્પશન માટે, કન્ઝમ્પશનના માટે મતલબ પોતાના ઉપયોગ માટે એ એક્સપેન્સ અગર જે કરે એને તમે કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચરમાં મૂકી શકો છો। કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર જે છે એ ડિરેક્ટ કન્ઝમ્પશન માટે છે, ઓકે। હું ગુડને ખરીદું અને હું ખાઈ લઉં, ઓકે। ફોર એક્ઝામ્પલ હું એપલ ખરીદું અને હું ખાઈ લઉં, એને કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર કહેવાય। કેમ કે એની બેનિફિટ મને 1 કલાક કે 2 કલાક કે 3 કલાક માટે મળે, ઓકે। એવા બધા એક્સપેન્ડિચરને હું કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચરમાં રાખું। પછી આવે છે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ। ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બે પ્રકારના હોય છે, પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ઇન્વેન્ટરી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ। પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ શું છે? પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટને આપણે પ્રાઇવેટ કેપિટલ ફોર્મેશન તરીકે પણ ઓળખાય છે। પ્રાઇવેટ કેપિટલ ફોર્મેશનમાં શું થાય છે? તમે જે ગુડ ખરીદો છો, તમે જે વસ્તુ ખરીદો છો એનું બેનિફિટ જે છે તમને 1 વર્ષથી વધારે મળે છે, ઓકે। 1 વર્ષથી વધારે જે બેનિફિટ મળે એને તમે પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં મૂકો છો। પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું ડેફિનેશન એ છે કે તમે જે ઉત્પાદનની ક્ષમતાને વધારવા માટે જે ખરીદી કરો છો એ તમારું પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે। પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં તમારા મશીનરીની ખરીદી અને મશીનરીનું વેચાણ, જે સ્ક્રેપમાં તમે વેચો છો એને ભંગારમાં જે તમે વેચો છો એને સ્ક્રેપ કહેવામાં આવે છે ઇંગ્લિશમાં। સ્ક્રેપમાં કે ભંગારમાં જેને વેચી કાઢો છો અને જે નવી મશીનરી ખરીદો છો એને તમે પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં મૂકો છો। અને પછી આવે છે ઇન્વેન્ટરી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ। ઇન્વેન્ટરી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે જ્યાં તમે ગુડ્સની ખરીદી ઉત્પાદન માટે કરો છો અને પર એની બેનિફિટ તમે 1 વર્ષથી ઓછા સમય માટે મળે છે, તો એને તમે इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट કહો છો। क्लियर? सो फार एक्सपेंडिचर के कितने कंपोनेंट्स है? 3 कंपोनेंट्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेरे खाने के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में मुझे बना के खाने के लिए मुझे जो चाहिए वो मैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में रखूँगी। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 2 महीने के बाद प्रोडक्शन करने के लिए आज मैंने रॉ मटेरियल मंगवा लिया, वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सो दैट इज़ व्हाट इन्वेस्टमेंट के एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स है ना। ये एक्सपेंडिचर के कंपोनेंट्स इसीलिए समझने ज़रूरी है क्योंकि कई बार whenever the expenditures are to be undertaken, this has a direct impact on the GDP of a particular country। GDP के ऊपर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने कितना स्पेंड किया है। वॉट एवर वी हैव सीन इन द GDP कैलकुलेशन, हमारी एक्सपेंडिचर जो है, आर एक्सपेंडिचर बिकम्स देयर इनकम, ओके। हमारी एक्सपेंडिचर वंस एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल देवीना अगर कुछ बेच रही है, मैं उसे खरीद रही हूँ, तब उसे इनकम हो रही है, ओके। सो माई एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंडिचर इज देवीनाज इनकम, ओके। सो जब ये इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करते, જ્યારે એ બંને વચ્ચે જે રિલેશનશિપ તમે ઊભી કરો છો ત્યારે જ તમારી नेशनल इनकम अकाउंटिंग થઈ શકે છે। इन दोनों के बीच में जब तक रिलेशनशिप आप एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हो तब तक आप नेशनल इनकम कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। सो ये दोनों इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ 2 साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन, ओके। एक कॉइनના બે ફેસીસના જેવા છે કે એક તરફ હેડ આવે અને એક બાજુ ટેલ છે। તમે હેડ અને ટેલ, अगर आपको हेड मिल रहा है तो किसी को टेल मिला होगा, दैट्स व्हाट दे से। सो माई एक्सपेंडिचर इज समवन एल्सेस इनकम, सो मेरी इनकम किसी और का एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी को सर्विसेज दी है तो वो मुझे इनकम देगा, पर उसके लिए तो वो एक्सपेंस हुआ, उसने तो वो खर्चा किया है। तो इस तरह से सर्कुलर फ्लो में इनकम कैलकुलेशन चलता रहता है। सो हमने इनकम अच्छे से पढ़ लिया है, एक्सपेंडिचर देख लिया है, अब हम लोग देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे चलता है। सर्कुलर फ्लो का बेसिक डायग्राम मैंने आपको समझा दिया था, पर हम लोग डिटेल में 2 फैक्टर सर्कुलर फ्लो, 3 फैक्टर सर्कुलर फ्लो देखेंगे कि अगर फॉरेन सेक्टर को ऐड कर दिए जाए, अगर बैंकिंग, अगर हमारा गवर्नमेंट सेक्टर भी ऐड हो जाए तो सिचुएशन कैसी रहती है। अगर हम लोग टैक्सेस ऐड करेंगे, अगर हम लोग बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो कैसे चलता है। सो यहाँ पे हम लोग वो देखेंगे।
So just give me a 1 minute. So we are talking about circular flow of income. So circular flow of income सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है कि यहाँ पे हमारा इनकम जो है, एक का एक्सपेंस दूसरे का इनकम कैसे बन रहा है वो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू सी एज टू हाउ वंस इनकम बिकम्स अनदर पर्सनस एक्सपेंस एंड हाउ अदर पर्सनस एक्सपेंस बिकम्स योर इनकम. ओके, सो बेसिक हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चलता है वो दो डिफरेंट सेक्टर से हम लोग देखते हैं. ओके, मेजरली एज्यूमिंग दैट देर आर ओनली टू सेक्टर्स इन इकोनॉमी. On the one side we have household sector and on the other hand we have the business firms. ओके, एक तरफ आपका हाउसहोल्ड सेक्टर्स है और दूसरी तरफ आपके बिजनेस फर्म्स है. नाउ हाउसहोल्ड सेक्टर्स क्या करते हैं? हाउसहोल्ड सेक्टर्स जो है वो इनकम कमाते हैं और वो स्पेंडिंग करते हैं. ओके, हाउसहोल्ड सेक्टर्स earn income and they spend the income. Business sectors, they produce the goods and they sell the goods. Okay, समझ में आया? They produce the goods and sell the goods. Household sectors earn income and they spend the income. Okay, household is always considered to be a net saver. उसके पास इनकम जितना है वो पूरा का पूरा स्पेंड नहीं कर देता है. हम लोग सेविंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद देखेंगे बाद में. पहले हम लोग सिंपल सर्कुलर फ्लो देखेंगे, उसके बाद हम लोग सेविंग्स को ऐड करके देखेंगे, उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट को डालेंगे, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को डालेंगे, फॉरेन सेक्टर को डालेंगे, एंड देन वी विल बी सीइंग एज टू हाउ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिएक्ट्स. ओके, उसमें हम लोग 3 फैक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 4 फैक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 2 फैक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विथ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, ऐसे हम उसे डिफरेंट नाम देंगे. सो हम पहले बेसिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देख रहे हैं. सो बेसिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सबसे पहले द बिजनेस फर्म डिसाइड्स दैट इट हैज़ टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स. ओके, गुड्स की प्रोडक्शन करना है, ऐसे बिजनेस साइकिल बिजनेस फर्म डिसाइड करता है. ओके, सो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए बिजनेस फर्म को सबसे पहले हाउसहोल्ड्स के पास से सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सर्विसेज फ्रॉम द हाउसहोल्ड, सर्विसेज फ्रॉम services are taken, सर्विसेज लेके बिजनेस फर्म क्या करता है? गुड्स प्रोड्यूस करने शुरू कर देता है. अब गुड्स सर्विसेज देने के बदले में हाउसहोल्ड सेक्टर को क्या दिया जाता है? इनकम. ओके, हाउसहोल्ड सेक्टर को इनकम मिलता है. वाई? बिकॉज बाय गिविंग द सर्विसेज इट नीड्स टू गेट समथिंग इन रिटर्न. ओके, कुछ रिटर्न ना मिले तो हाउसहोल्ड सेक्टर वहाँ पे काम नहीं करेगा. Keep this in mind. Whenever nothing is given in return, no one is going to work against it. Okay, return में या तो आप appreciation दो, या फिर आप income दो, या फिर आप कुछ ना कुछ दो, तभी लोग काम करते हैं, वरना काम नहीं करते हैं. So the next one is almost similar like अगर आप क्लास में आ रहे हो, अगर मैं आपको शाबाशी नहीं दूंगी तो आप भी क्लास में आना बंद कर दोगे. ओके, सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में भी यही चीज़ चल रही है कि भाई अगर आप हाउसहोल्ड सेक्टर को इनकम नहीं दोगे तो हाउसहोल्ड सेक्टर आके काम नहीं करेगा. ओके, सो इन सर्विसेज लेके हम उन्हें इनकम दे रहे हैं. अब हाउसहोल्ड्स के पास इनकम आ गई है, હાઉસહોલ્ડ્સના પાસે ઇન્કમ આવી ગઈ છે. હવે શું કરે છે હાઉસહોલ્ડ? જે હાઉસહોલ્ડ પાસે ઇન્કમ આવી છે એ સ્પેન્ડ કરવાનું ચાલુ કરે. अब स्पेंड कहाँ से करेंगे? ओके, यहाँ पे हमने सर्विसेज ली और इनकम दी, इसका आउटपुट क्या निकल के आया कि गुड्स प्रोड्यूस हुए. ओके, यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया, गुड्स प्रोड्यूस हुए. अब गुड्स को क्या किया जाता है? व्हाट आर द गुड्स बीइंग डन? गुड्स वुड बी सोल्ड इन द मार्केट. गुड्स किसके लिए बनाए गए हैं?
गुड्स जो है वो हाउस होल्ड्स के लिए बनाए गए हैं. प्रोडक्ट्स आर sold to the household sector. Business firm sells the products to the household sector, and household sector in turn what it does is that it buys the product and transfers the income back to the business firms. Okay, buys, or we can call it purchases if we want to call it as purchases and transfers income. सो ऐसे आपका सर्कुलर फ्लो काम करता है कि भाई आपने एक टाइम पे गुड्स दिए, ओके, एक आपने सर्विस दी, उसके अगेंस्ट में इनकम ली, इनकम को आपने क्या किया, परचेज करने के लिए यूज़ कर दिया. परचेज क्या किया आपने, जो बिजनेस फर्म ने जो गुड्स प्रोड्यूस किए थे उसी को आपने परचेज किया. दिस इज अ सिंपल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी. ओके, इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्लियर? सिंपल वाला क्लियर हुआ कि फिर से एक और बार समझाऊं मैं. कैन आई गेट अ कंफर्मेशन? Whether it should be repeated again? Should I repeat it again बेटा खुशबू? ओके ओके, सिंपल आप लोग को समझ में आ गया है. अब हम इसमें 2-3 कंपोनेंट्स ऐड करते करते एक एक करके हम लोग कंपोनेंट्स ऐड करेंगे. सो द नेक्स्ट type of circular flow that we would be seeing is that when we add something known as, okay, let me do this one. We would be adding 2 more sectors into this picture. okay, हम लोग 2 सेक्टर्स को ऐड कर देते हैं यहाँ पे. कौन कौन से? बिजनेस, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं, और हम 2 मार्केट्स को इसमें ऐड करेंगे. ओके, पहले हम लोग 2 मार्केट्स को ऐड करते हैं. रिसोर्सेज मार्केट एंड प्रोडक्ट मार्केट को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं. अगर हम यहाँ पे उन्हें डिफाइन करें तो अभी हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऐसा हमने नहीं कहा है. ये सर्विसेज दिए हैं, प्रोडक्ट्स बेचे हैं, ऐसे हमने डायरेक्टली बता दिया है. बट अगर हमारा सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, okay, if our economy becomes organized, then how would be the transactions undertaken? So we would be seeing circular flow of income with 2 sectors, and 2 markets. okay, and 2 markets. 2 सेक्टर्स है, 2 मार्केट्स है. अब ये 2 सेक्टर्स कौन कौन से है? विच इज़ फेयरली सिंपल. फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर के बिना काम नहीं हो सकता है, इसीलिए हाउस होल्ड सेक्टर रहेगा. देन वी हैव द सेकेंड वन विच इज बिजनेस सेक्टर, क्योंकि बिजनेस सेक्टर के बिना कुछ प्रोड्यूस नहीं हो सकता है. सो हाउस होल्ड सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर है. हम 2 मार्केट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं विच इज नोन एज अ प्रोडक्ट मार्केट, थिंकिंग दैट द dispatch of goods or the goods which are being supplied into the market is in a organized manner. organized manner में ही goods हमारे वहाँ पे market में जा रहे हैं. okay, now what happens? the next one is the resources market. okay, हम resources market की तरफ जा रहे हैं. तो हमारे यहाँ पे 4 सेक्टर 2 सेक्टर हुए और 2 डिफरेंट मार्केट्स हुए. 2 सेक्टर्स जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर, और मार्केट्स जो है हमारे प्रोडक्ट मार्केट और रिसोर्सेज मार्केट. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस?
इज दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर्कुलर फ्लो कैसे काम करता है, बिजनेस सेक्टर जो है वो रिसोर्सेज मार्केट में जाके रिसोर्सेज कलेक्ट करता है. ओके, द बिजनेस सेक्टर अप्रोचेस द मार्केट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि इन ऑर्डर टू गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम द मार्केट. ओके, रिसोर्सेज लेने के लिए या फिर ओके लेट्स स्टार्ट द पॉइंट फ्रॉम हियर. ओके, प्रोडक्ट मार्केट में से जितनी भी कमाई होगी, whatever is being earned in the product market is supposed to be invested by the business sector. okay, प्रोडक्ट मार्केट से इनकम आई, वो किसके पास आई, बिजनेस सेक्टर के पास प्रोडक्ट मार्केट से इनकम आई. बिजनेस सेक्टर ने क्या किया, उसे री इन्वेस्ट कर दिया. री इन्वेस्ट करने के लिए वो रिसोर्सेज मार्केट में जाके रिसोर्सेज ले रहा है. रिसोर्सेज मार्केट में रिसोर्सेज कौन दे रहा है, इन ऑर्डर टू गेट द रिसोर्सेज इन द मार्केट हाउस होल्ड सेक्टर इज वर्किंग. हाउस होल्ड सेक्टर क्या काम कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर रिसोर्सेज कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. ओके, अपने सर्विसेज यहाँ पे ऑफर करता है हाउस होल्ड सेक्टर. अब हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, जो भी उसके पास इनकम आएगी वो प्रोडक्ट मार्केट में जाके बेचेगा या फिर वो वहाँ पे स्पेंड करेगा. प्रोडक्ट मार्केट जो है वो उसमें किसने गुड्स आपको दिए हैं, प्रोडक्ट मार्केट में गुड्स आपको बिजनेस सेक्टर ने दिए हैं. बिजनेस सेक्टर के उसके पास से इनकम जनरेट होती है. तो अगेन द सर्कल कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग. बिजनेस सेक्टर ने गुड्स प्रोड्यूस करके प्रोडक्ट मार्केट में छोड़ दिए. ओके, यहाँ पे मैं एक डॉटेड लाइन में डाल रही हूँ या फिर मैंने ग्रीन कलर चूज किया है इन ऑर्डर टू शो कि प्रोडक्ट मार्केट में बिजनेस सेक्टर ने okay, this is a pink line. I'll use a green one because it gets much more easier to see. okay, प्रोडक्ट मार्केट ने में बिजनेस सेक्टर ने अपने गुड्स को वहाँ पे निकाले. ओके, इट हैज टेकन आउट और इट इज ट्राइंग टू सेल द गुड्स इनटू द मार्केट. ओके, अगर हम लोग ये सर्कुलर फ्लो को अलग तरह से देखें, ओके, इफ आई वांट आई कैन शो इट इन द डिफरेंट मैनर ऑल्सो. ओके, दूसरा एक तरीका है सर्कुलर फ्लो को समझाने का, वो भी हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रोडक्ट मार्केट से जो इनकम आ रही है उसे री इन्वेस्टमेंट करने की बात की है. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट मार्केट से चीज़ें कैसे बाहर निकल के आती हैं. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, स्टार्टिंग फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर, हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर से शुरुआत कर रहे हैं. ओके, पहले हमने कहाँ से शुरुआत की थी, बिजनेस सेक्टर से. ओके, बिजनेस सेक्टर से हमने शुरुआत की थी. लेट्स कीप दैट ऑल्सो. और अंडू करेंगे तो आ जाएगा. ओके ओके, the purple one is indicated as to how the business is viewing it. okay, circular flow को business कैसे view out कर रहा है वो हमने पर्पल कलर से इंडिकेट किया है. अब हम लोग जो है वो दूसरे कलर से, let's take another color, another much more visible color. let's take dark green and see as to how a household sector views it. okay, starting from the household sector, if we go ahead, household sector offers its services in the resource market. resource market में से उन services को प्रोडक्ट बिजनेस सेक्टर लेता है. बिजनेस सेक्टर क्या करता है, उन्हीं सर्विसेज को यूज करके गुड्स प्रोड्यूस करता है. गुड्स जो है वो प्रोडक्ट मार्केट में रखे जाते हैं. प्रोडक्ट मार्केट के जो गुड्स है वो किसके लिए रखे गए हैं, हाउस होल्ड सेक्टर के लिए रखे गए हैं. So the household sector offers their services in the resource market. Resource market, in the resource market, these services are availed by the business sector. Business sector uses these services in order to produce the goods and release the products in the product market. Product market में जो भी goods मिलते हैं वो क्या करता है, वो household sectors खरीद लेते हैं. एंड द सर्कल गोज ऑन लाइक दिस. ओके, सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द हाउस होल्ड द थिंग्स बिगिन व्हेन दे आर ऑफरिंग देयर सर्विसेज इन द रिसोर्सेज मार्केट. from the viewpoint of the business sector, the
process begins when they avail the services from the resources market. Okay, resources market में से services avail किए, household के goods बनाए, households ने जाके उसको income मिला, households ने जाके उसे spend किया product market में, product market से जो income आई वो business sector की income हुई. तो वैसे अगर हम लोग बिजनेस के व्यू पॉइंट से देखें तो ऐसे शुरुआत होती है. हाउस होल्ड के व्यू पॉइंट से अगर हम लोग शुरुआत करें देखें तो शुरुआत कहाँ से होती है. हाउस होल्ड रिसोर्सेज मार्केट में अपने सर्विसेज देते हैं. सर रिसोर्सेज मार्केट में जो सर्विसेज दिए है वो बिजनेस सेक्टर यूज करता है. बिजनेस सेक्टर जो सर्विसेज यूज करता है वो किस लिए यूज करता है, प्रोड्यूस करने के लिए यूज करता है. प्रोड्यूस करके वो गुड्स को हाउस होल्ड्स को बेच देते हैं. अल्टीमेटली द इनकम दैट इज अर्न्ड बाय द हाउस होल्ड्स कम्स back to the business sector in some form or other, and the efforts that the household sector has made in order to undertake the production gives them a benefit of having this production in their hand, having the good in their hand. Okay, so गुजराती में एक और बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग दो फैक्टर से हम लोग 3 फैक्टर या 4 फैक्टर की तरफ बढ़ जाते हैं. जो બિઝનેસ સેક્ટરના વ્યૂ પોઈન્ટથી જો આપણે સર્ક્યુલર ફ્લો ઓફ ઇન્કમને સમજીએ તો શું કરવામાં આવે છે. બિઝનેસ સેક્ટર જે છે એ ઇન્કમ ક્યાંથી કમાવે છે, પ્રોડક્ટ માર્કેટમાંથી કમાવે છે. પ્રોડક્ટ માર્કેટની જે ઇન્કમ છે એ રીઇન્વેસ્ટ કરે છે બિઝનેસ સેક્ટર. બિઝનેસ સેક્ટર એને રીઇન્વેસ્ટ કરવા માટે રિસોર્સિસ માર્કેટમાંથી રિસોર્સિસ લે છે. રિસોર્સિસ માર્કેટમાં રિસોર્સિસ કોણ આપે છે કે સર્વિસીસ કોણ આપે છે, હાઉસહોલ્ડ સેક્ટર સર્વિસીસ આપે છે. એ જે હાઉસહોલ્ડ સેક્ટર જે સર્વિસીસ આપે છે એ સર્વિસીસ આપીને જે ઇન્કમ કમાવે છે એને આપણે પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં ખરીદી કરવા માટે વાપરવામાં આવે છે. અને એ છે તમારું સર્ક્યુલર ફ્લો ઓફ બિઝનેસ, સર્ક્યુલર ફ્લો ઓફ ઇન્કમ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द बिजनेस सेक्टर. जब हम लोग હાઉસહોલ્ડ સેક્ટર की तरफ चले जाए, હાઉસહોલ્ડ સેક્ટર શું કરે છે એ પોતાના સર્વિસીસ, પોતાના જે સ્કિલ્સ છે એ રિસોર્સિસ માર્કેટમાં આપે છે. રિસોર્સિસ માર્કેટમાંથી આ સ્કિલ્સને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને બિઝનેસ સેક્ટર એ સ્કિલ્સને વાપરીને પ્રોડક્ટ્સ બનાવે છે. પ્રોડક્ટ્સ બનાવીને એ પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં વેચે છે. પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં વેચવીને એને ઇન્કમ મળે છે. આ ઇન્કમ કોણ આપે છે એમને, આ ખરીદી કોણ કરે છે, હાઉસહોલ્ડ સેક્ટર કરે છે. તો આ તમારી 2 સેક્ટર 2 मार्केट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम છે. दिस इज व्हाट 2 सेक्टर 2 मार्केट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज. ओके, हमने यहाँ पे मार्केट्स को ऑर्गेनाइज कर दिया. जो हमने सिंपल देखा था वहाँ पे मार्केट्स ऑर्गेनाइज नहीं थे, इसमें मार्केट्स ऑर्गेनाइज्ड है. नाउ एडिंग वन मोर सेक्टर इनटू द पिक्चर, व्हाट हैपेंस देन. So we have the 4 measures. फोर मेजर्स यहाँ पे हमारे कैलकुलेट किए जा सकते हैं. 4 सर्कुलेटिंग मेजर्स वी कैन फाइंड आउट व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस पोर्शन. ओके, मैं अब हाइलाइटर यूज करूँगी. व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस पोर्शन, ओके, these 2 arrows, okay, which are highlighted in yellow, show what these measure the GDP. okay, why GDP क्यों मेजर कर रहा है ये वाली 2 एरोज? बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं पे गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं. एंड द डेफिनेशन ऑफ GDP सेज कि व्हेन यू आर अंडरटेकिंग द प्रोडक्शन, જ્યારે તમે ઉત્પાદન કરો છો એને તમે જીડીપીમાં ઇન્ક્લુડ કરો છો. ઓકે, વેન યુ આર પ્રોડ્યુસિંગ સમથિંગ ઇટ ગેટ્સ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ધ જીડીપી. ધેટ્સ વોટ જીડીપી ડેફિનેશન સેઝ. Production is equivalent to GDP. If it comes into the market, it has to be considered in the GDP of a particular country. That is what GDP is. So these 2 arrows show you the GDP of a particular country. Then we have the next one. Okay, lower right segment, यहाँ पे ये जो हमने चीज़ देखी है which is getting highlighted in blue color now. Okay, I'll be using blue in order to highlight that. These 2 arrows
these arrows show you the फैक्टर इनकम. ओके, ये फैक्टर इनकम की बात हो रही है यहाँ पे. सॉरी, we are able to say we are able to get the factor payments. Okay, या फैक्टर पेमेंट्स की यहाँ पे बात चल रही है. लेट मी जूम इट आउट ऑफ इट. या so this indicates the factor payments aspect of the particular circular flow of income. Why? Because the business sector has availed the services. Okay, business sector ने यहाँ पे services avail की है, इसीलिए उसके अगेंस्ट में उसे पेमेंट भी करना है. यहाँ पे 4 फैक्टर इनकम्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फैक्टर पेमेंट्स. द फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट, then we have the wages, then we get the rent, and then we get the profits. All these factors payments are being included in this particular area because यहाँ पे we are availing the services. જ્યારે આપણે સર્વિસ અવેલ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે પેમેન્ટ કરીશું એના બદલામાં. તો આને તમે અહીંયા ડિપીટ કરો છો. આ 2 એરોથી તમારે અહીંયા સર્વિસની फैक्टर पेमेंट मले छे. दीज 2 एरोज, ये 2 एरोज आपके फैक्टर पेमेंट्स को डिपिक्ट करते हैं क्योंकि आपने सर्विसेज अवेल की है तो उसके अगेंस्ट में आपने पेमेंट भी करनी होती है, वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. देन कम्स द नेशनल इनकम. ओके, लोअर राइट सेगमेंट. ओके, लेफ्ट हैंड सेगमेंट, दैट इज यहाँ पे. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी यूज अनदर कलर टू शो इट. सो आई विल बी यूजिंग टैन कलर. Okay, so ये जो मैंने अभी लाइट ऑरेंज में इंडिकेट किया है उसे हम लोग नेशनल इनकम कह सकते हैं. दिस इज व्हाट नेशनल इनकम. This is your national income, which indicates the income earned by the household sector for supplying labor, capital, land, entrepreneurship to the business sector. बिजनेस सेक्टर को बहुत सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज देने के बदले में ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है नेशनल इनकम की तरह. सो जितनी भी चीज़ें नेशनल इनकम की तरह आप कमा सकते हो, वॉट एवर इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम इज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर एरोज ओनली. यही एरोज में आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट आप कर सकते हो. And lastly we have consumption expenditure. Okay, consumption expenditure is basically the money that has been paid by the household sector to the corporate sector to avail different types of services. Okay, so let's use okay. So consumption expenditure यहाँ पे include किया जाता है आपका. Okay, this is the reason. Okay, this is the region where consumption expenditure is included. Okay, ये आपका consumption expenditure. So this is what to sector, to market, circular flow of income. To sector, to market, circular flow of income. Is it clear? To sector, to market, circular flow of income. Can I get a confirmation whether it is clear or not? Great. Dion, okay, right. Yeah, everyone is clear about it.
सो विल बी स्टॉपिंग हियर टुडे. टुमारो हम लोग 4 फैक्टर थियरी देखें, 4 फैक्टर मॉडल देखेंगे, wherein we would be including 4 sectors and 3 markets. ओके, यहाँ तो हम लोग पहले 3 sector 3 markets देखेंगे, उसके बाद हम लोग 4 sector 4 markets देखेंगे. तो थर्ड सेक्टर दैट वी वुड बी इंक्लूडिंग इज द गवर्नमेंट सेक्टर इनटू द पिक्चर. और हम लोग बाद में 4 sector 4 market देखेंगे. 4 sector 4 market मीन्स वहाँ पे हम लोग फॉरेन सेक्टर को भी इंक्लूड करेंगे और फॉरेन मार्केट को इंक्लूड करेंगे. तो वो 2 एस्पेक्ट्स कल हम लोग डिस्कस करेंगे. Just give me a minute. I'll be sharing your attendance passport for it.